So welcome everyone. Okay, so the first part of this video was closed or ended. I didn't know when it ended. Okay, so I'm making a second part and it is going to start from the first one ended. Okay, and I'm showing that I have some notes of this chapter, biodiversity conservation. And if you would like to have these beautiful notes, not beautiful and very concise notes, actually I would say, I would show you. A very concise notes. So I want you comment down the video, although I would be posting the PDF of this, but yeah, commenting down would help me to get to know how I should make the videos later on. Okay, so I was showing you in the earlier video what tropic and temperate are. Okay, so suppose this is the earth and this is the latitude of tropic of Cancer, okay, and it is from equator 23.5 degree towards north, because this is north, this is south, and this is 0 degree, or you can say equator. And नीचे है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, एंड दिस लेटीट्यूड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, सो दिस होल ट्रॉपिक and this Capricorn of Cancer and all that, so it comprises of the tropic region, and except that here it is temperate, and there's one more region also here, but we need not to study that only. बस इतना याद रखो कि ये ट्रॉपिक है एंड ये वाला थोड़ा सा टेम्परेट है यहाँ का. ठीक है, तो ट्रॉपिक इक्वेटर के पास होता है, टेम्परेट इक्वेटर के दूर होता है. ठीक है, बस. अब आपको ये नोट्स जब देखने को मिलेंगे, जब आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा. अच्छा, where were we? We were here, kind of. Okay. Okay, so we are going to study patterns of biodiversity, and in the patterns of biodiversity the first topic was latitudinal gradient, and yeah, today we are expecting to end this chapter. Okay, so latitudinal gradients, तो क्या लिखा है यहाँ पे? The diversity of plants and animals is not throughout. हमने अभी तक ये पढ़ा था कि diversity is not uniform, and we cannot predict that this region is going to be very much diverse in the new coming years or not. And it had कि species diversity decrease as we move from equator to poles and increase as we move from poles to equator. Okay, मतलब पोल्स पे कम होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है. अच्छा, फिर इसने बोला है कि कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क में जो कि 41 डिग्री नॉर्थ है, इट हैज़ 105 स्पीशीज. एंड ग्रीनलैंड ऊपर की साइड है पोल्स पे, तो इट हैज़ 56 स्पीशीज. सो यू कैन सी कि हाउ मच कोलंबिया इज नियर द इक्वेटर, इट इज स्लाइटली अबव द इक्वेटर and it is far away from the equator, so you can see the decrease in the number of species. Okay, in the birds only, it is the species of the birds we are yes, more focused. देन यहाँ पे लिखा है कि इंडिया विद मच ऑफ लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इंडिया का ज़्यादातर एरिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, मोर देन
इंडिया में कितनी है? तो इट इज़ 1200 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स. देन अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल इक्वेटर रीजन लाइक इक्वेटर, अ फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है इक्वेटर. ओके, दिस इज अ फॉरेस्ट, has up 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the midwest of the USA. Okay, ये लाइन क्या कह रही है? It is saying that, see this thing. Okay, see this thing. देखो यहाँ पे है साउथ अमेरिका, यहाँ पे कोलंबिया था, यहाँ पे 1400 स्पीशीज़ हैं. यहाँ पे न्यूयॉर्क है, यहाँ पे 105 स्पीशीज़ है. यहाँ पे कहीं ग्रीनलैंड है, यहाँ पे 56 स्पीशीज़ हैं. और यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे हमारा 1200 स्पीशीज़ है. ये इक्वेटर हो गया, ठीक है. ये दिस इज़ द लाइन ऑफ इक्वेटर एंड दिस इज़ पैसिफिक ओशन. तो ये क्या कह रहा था यहाँ पे? A forest in this has up to 10 times species of vascular plants, है ना. तो यहाँ पे कहीं हमारा फॉरेस्ट है, तो उसका इक्वेटर फॉरेस्ट है. इक्वेटर फॉरेस्ट है, उसमें एटलीस्ट 10 टाइम्स उस वैस्कुलर प्लांट का स्पीशीज है. दैन इन द मिडवेस्ट रीजन ऑफ मिडवेस्ट अमेरिका. देखो मिडवेस्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सपोज, तो इसका वेस्ट साइड कहाँ पे होगा? इसका वेस्ट साइड होगा यहाँ पे, हेयर साइड, ठीक है. तो वेस्ट साइड और मिड में, तो इट इज समवेयर हेयर, ठीक है ना. देखो हाँ, the largely tropical Amazonian rain forest जैसे कि हमें पता है उसमें है ब्राज़ील में, in the South America, yes, has the greatest biodiversity on earth. It is the home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and 1 lakh invertebrates. Can you believe this? 40,000 of species. Please learn this all thing, ठीक है. Slightly learn और दिमाग में बैठा लो कि it's nearly this. तो it's 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 are mammals and amphibians are equal, 378 less than this is reptiles, and invertebrates are around 1,25,000. Scientists estimate that in rainforest there might be at least 2 million species waiting to be discovered and named. So 2 million species are going to be discovered. ठीक है. What is so special about the tropics that might account for the greater biological diversity? अब tropics में ऐसा क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा diversity आती है. Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long, we will look up to. Okay, see कि why tropics only. देखो speciation क्या होता है? स्पीशीज मतलब स्पीशीज़ का बढ़ना, स्पीशीज़ इकट्ठा होना, है ना. एक प्राणी को लाके इट डज नॉट इंक्लूड द स्पीशीज़ इंक्लूड्स मैनी ऑफ योर सिंगल ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम लगता है. बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं इसमें ग्लेशिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना. तो डिस्टर्बिंग थिंग्स होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिएशन नहीं हो पाता, और जो भी आती है वो माइग्रेट कर जाती है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस. तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा होता नहीं है, अनडिस्टर्ब रहते हैं ट्रॉपिक्स हमारे.
ग्लेशिएशन होता है टेम्परेट में, और ट्रॉपिक्स रहते हैं हमारे अनडिस्टर्ब। ठीक है, लिखा है कि नो अनफेवरेबल सीजन्स है यहाँ पे ट्रॉपिक में, एंड मोर सोलर एनर्जी, धूप बहुत पड़ती है यहाँ पे, एंड ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे लेस कंपटीशन होता है ट्रॉपिक्स में, और मोर रिसोर्स होता है, और लेस रेट ऑफ एक्सटेंशन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, है ना, ये क्या था कि दैट हैड अ लॉन्ग evolutionary time for species diversification. B. Tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, yes, and relatively more constant and predictable. Such a constant environment promote niche specialization. देखो, niche specialization. Now, what is niche specialization? Leads to greater species diversity. नीच होता है वहाँ का जैसे पर्टिकुलर एनिमल का उसका रहना सहना एंड ऑल द फूड वेयर इट रिक्वायर्स, एंड लेट टू ग्रेटर, ये भी नीच की डेफिनेशन उसमें है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, देयर इज मोर सोलर एनर्जी available in the tropics which contribute to the higher productivity, thus in turn might contribute indirectly to the greater diversity. अच्छा, सेकेंड हम पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो होता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, और इससे क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। नाउ ड्यूरिंग हिज पियोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल्स, अभी इसने क्या करा था, कहाँ पे इसने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था, तो दैट इज ऑफ साउथ अमेरिका जंगल्स। ठीक है ना, साउथ अमेरिका जंगल जैसे अमेजोन हो गया। द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन, इनका नाम याद रख लें, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन द रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जितना आप एक्सप्लोर करते जाओगे ना उस एरिया को, उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ बढ़ती जाएंगी कुछ एरिया में, बट कुछ एरिया में, ये कुछ एरिया के लिए है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। ठीक है, कुछ एरिया में। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, and freshwater fishes turns out to be a rectangular hyperbola. Okay, here. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line. अगर मैं logarithmic scale की बात करूँ तो it is a straight line. Now described by this equation log s log c. देखो basically relation is this: s equals to c z की पावर c a की पावर z. ओके, s equals to c into a की पावर z. तो हम इसको लॉग की इक्वेशन में ऐसे बोलेंगे, मैथ्स वालों को इजी लगेगा, बायो वाले रट लें। वेयर s इक्वल्स टू स्पीशीज रिचनेस, a इक्वल्स टू एरिया, z क्या है यहाँ पे, ये बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्कर्स में। इट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, और यू कैन से इट इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्योंकि ये रिग्रेट कर रहा है, मतलब रिग्रेस कर रहा है ना, डाउनफॉल होने वाला है इसका भी। एंड c इज योर y इंटरसेप्ट, इट इज़ लाइक दिस, तो यहाँ पे आता है आपका c। ओके, ecologist has discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2। कहाँ, किस चीज़ के लिए? regardless of the taxonomic group or the region। ठीक है, मतलब हर जगह, everywhere it follows this value regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plant in Britain, birds in California, or molluscas in New York State, the slope of the regression line are amazingly similar। ठीक है, तो उसने साउथ अमेरिका में कंडक्ट करा था, उसने ब्रिटेन का भी देख लिया, कैलिफोर्निया का भी, न्यूयॉर्क में भी, तो देखा कि z की वैल्यू सेम लाई करती है ऑलमोस्ट।
areas. But if you analyze the species area relationship among very large areas in like the entire continents, अगर मैं study करूँ, तो you will find that slope of the line to be much steeper. तो ये slope जो है steeper हो जाएगी. steeper मतलब खड़ी खड़ी. ये जितना अभी ऐसे बैठी हुई चल रही है ना, मतलब ये हमारी y एक्सिस एंड दिस इज़ योर लाइन, ठीक है ना, मतलब जो भी ये स्लोप है ये, तो इसके बीच का ही अगर एंगल है ये वाला, ये जितना कम होगा ना उतनी स्लोप स्टीपर होगी. जैसे स्टीपर स्लोप समथिंग लाइक दिस, ऐसे, ठीक है. और यू कैन से ऐसी स्टीपर स्लोप. ओके, तो z वैल्यू अगर वहाँ पे मैं देखूँ स्टीपर स्लोप के लिए क्या लाई करती है, 0.6 to 1.6. अब इसकी रेंज है बहुत ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इसके लिए फ्रूगीवोरस, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, फ्रूगीवोरस बर्ड्स, फ्रूगीवोरस बर्ड्स कौन सी बर्ड्स होती हैं ये, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, है ना. एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15. अब इन के लिए इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट it is found to be 1.15. ओके, ना देखो जितना एरिया कम होगा उतनी स्पीशीज ज़्यादा होंगी, है ना. बस यही होता है स्टीपर स्लोप्स का मीनिंग, ठीक है. नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. क्या इम्पोर्टेंस है? Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tends to be more stable than those with less species. What exactly is the stability for a biological community? अब एक biological community के लिए ये stability क्या होता है हमें तो नहीं पता. या नाम जता we don't know what is stability or not. Now a stable community should not show, अच्छा ये points हैं तो ये मैं साथ में लिख रही हूँ कि stable community क्या क्या होती है. should not show too much variation in productivity. Okay, let's not write, I have notes, I would provide those. Should not show too much variation in productivity from year to year. ज़्यादातर वेरिएशन ना हो प्रोडक्टिविटी में. इट मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंसेज. मतलब ओकेशनल डिस्टर्बेंसेज जो भी आते हैं उसके लिए क्या हो, ये बिल्कुल रेजिस्टेंट हो, उसके होने से इसको खराबी ना हो. नेचुरल और मैन मेड हो सकते हैं डिस्टर्बेंसेज. एंड इट ऑल्सो मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाई दी एलियन स्पीशीज. एलियन स्पीशीज़ के लिए भी वही हो, रेजिस्टेंट हो. We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Stillman long-term ecosystem experiments using outdoor plots, ठीक है. अब एक और साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पे, डेविड टिलमैन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है. डेविड टिलमैन ने क्या करा था, उसने आउटसाइड प्लॉट्स कुछ खरीदे एंड उसमें लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट करा. तो he found that more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiments, increased diversity contributed to higher productivity. Okay. Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich diverse biodiversity is not only essential for ecosystem health but an imperative for the very survival of the human race on this planet. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if some species become extinct? ये क्वेश्चन अच्छा है. तो देखो, would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its
streak for species is lost forever. How is the quality of life affected? If we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth. तो ये पूछ रहा है एनसीईआरटी यहाँ पे कि हम अगर बहुत सारी जैसे 100 स्पीशीज़ हो तो उसमें हम एक स्पीशीज़ हटा भी देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे क्या ही बदल जाएगा. तो उसका आंसर है कि देयर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy, the Rivet-Popper hypothesis. The Rivet-Popper hypothesis. That is important from the exam point of view. It was discovered by the it was मतलब किसने बोला था ये, पॉल एहरलिच. अभी बताता है कि इन एन एयरप्लेन, जैसे मैंने एयरप्लेन लिया, अब मैंने एयरप्लेन को यहाँ पे एज अ इकोसिस्टम कंसिडर करें क्योंकि ऑल पार्ट्स आर जॉइन टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स. रिवेट्स मतलब वही समथिंग लाइक स्क्रू टाइप, ठीक है, स्पीशीज़. अब वो स्पीशीज़ की तरह एक्ट करती है. ना इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग एंड इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट, अब वो हर पैसेंजर जो है एक स्क्रू निकालना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, वही पूछ रहा है. टू टेक होम एंड इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड the plane becomes dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on the beams, each species that drive major ecosystem functions, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or the windows inside the plane. ये कह रहे हैं कि अगर मैंने रिवेट्स निकाले, सपोज मैंने उसकी एरोप्लेन के सीट से रिवेट्स निकाल दिए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा, एक सीट ख़राब होगी. बट मैंने अगर उसके एयरप्लेन के विंग्स से रिवेट निकाल दिए तो द होल प्लेन कैन क्रैश एंड इट वुड हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ द होल इकोसिस्टम. तो इसलिए वो रिवेट क्या काम कर रहा है, एज अ की स्पीशीज. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे. अच्छा, loss of biodiversity and your conservation are very much important. So let's see the things very attentively as well. Okay, loss of biodiversity. While it is doubtful if any new species are being added through speciation, into the Earth's treasury of species, there is no doubt about the continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the increasing finger is clearly pointing to human activities. The colonization of the tropical Pacific Islands. Pacific Islands कहाँ पे हैं? Pacific Islands हैं सी, एक ये Pacific Island है बिल्कुल अर्थ के एंड द साइड, और एक ये Pacific Island है, एक ऑस्ट्रेलिया के पास है, एक अमेरिका के पास. ठीक है. by humans is said to have led to the extinction of more than, अब देखो extinction किस का हुआ है, तो 2000 species of the native birds का हुआ है. IUCN Red List, IUCN एक रेड लिस्ट निकालता है. It documents the extinction of 784 species in the coming 500 years. और 20 years में 87 नहीं 27. ओके, तो ये डेटा है इसका ऑलमोस्ट. अच्छा, और एक्सटेंट कौन सी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक. एक तो डोडो फ्रॉम योर मॉरिशियस, एक क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, एक थाइलसिन फ्रॉम योर ऑस्ट्रेलिया, एक स्टेलर्स सी काउ फ्रॉम रशिया, एंड 3 सब स्पीशीज बाली, जेवन एंड कैस्पियन ऑफ द टाइगर. ठीक है. The last 20 years have witnessed the disappearance 27 species. मैंने लिख दिया already. Okay, next, come to the next page. Okay, shows that
extinctions across taxa are not random. ये जो extinction होता है ये लोगों ने study करा and they have seen कि it is not the random thing. Okay, they have studied and they have seen the pattern. So some groups like amphibians, तो अब यहाँ पे ये डेटा बता रहा है कि कौन कब एक्सटेंट होता है. See, some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Amphibians are more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario, more than 15,000 species are facing the threat of extinction. Presently अभी कितना एक्सटेंट हो चुका है तो हम उसको याद करेंगे. 12% birds, सबसे कम birds हुई हैं, and your 23% of the mammal species, 32% of the amphibian species and 31 species of the gymnosperm species in the world face the threat of extinction. तो सबसे ज़्यादा amphibians extinct की threat पे हैं. एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि अच्छा देखो, जब से हमारी अर्थ बनी है तो दे हैव प्रिडिक्टेड, दे हैव मतलब अभी तक देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन, कि अभी तक 5 बार पूरा 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है ऐसे. ओके, एंड योर 6th one is the current one where we are living right now. This is going to be the 6th extinction. एंड हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो 6th एक्सटेंशन है ना, इसका जो रेट ऑफ एक्सटेंशन है ना, इट इज़ लाइक 100 to 1000 टाइम्स मोर देन द अर्लियर 5 एक्सटेंशंस. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज ऑफ ऑल अवर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द थिंग्स वी ऑल डू. एंड देन एंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी रेड कि in the nearly 200 years, right? In the nearly 200 years, we will be sweeping all of the biodiversity from the earth. अच्छा, इन जर्नल कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस में लीड्स टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. अगर मेरा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता रहा, ऐसे होता रहा तो क्या क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है. क्या देखो, प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लिनेशन आ सकती है, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्चुबेशन एज सच एज ड्रॉट. अब रेजिस्टेंट ही नहीं रहेगी तो जब भी ऐसे ड्रॉट पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होएगा. देन इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम possesses such as plant productivity, water use and pest and disease cycles. देखो, इंक्रीज वेरिएबिलिटी हो जाएगी सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस में, जैसे हमारा प्लांट प्रोडक्टिविटी हो गया, वाटर यूज हो गया, पेस्ट हो गया, डिजीज साइकिल हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटीज़ आ जाएंगी. और क्यों आएंगी? ओनली ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों होगा? क्योंकि हमारी स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें होंगी. ठीक है, जो एक स्टेबल कम्युनिटी के लिए होती थी उसकी ऑपोजिट चीज़ें यहीं पे लिखी हैं. ठीक है, देखो, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है कि एविल क्वार्टेट. एविल मतलब गंदा, खतरनाक, डेंजरस. क्वार्टेट मीन्स योर 4 रीजन्स विच वी आर गोइंग टू रीडिंग. अच्छा, ये है थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ठीक है, द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज टू द एक्सटिंक्शन इज़ योर हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटाट मतलब उनका जहाँ पे वो रहते हैं वो लॉस हो जाना, और उनकी जो एरिया का है उसको फ्रेगमेंट्स में काट देना. तो वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल हैज़ कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
वंस कवरिंग मोर देन 40%, 14%। जो हमारा अमेजोनियन और जो ट्रॉपिकल वो था, तो वो पहले करता था 14%, अब तो वो सिर्फ 6% रह गया, और उसमें भी वी नो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पीशीज़ हैं. They have been destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1,000 more hectares would have been lost. अब Amazon rainforest को बोला जाता है lungs of the plants for cultivating soybeans, conversion of grasslands to raising beef cattle. ठीक है. Mammals and birds requiring large countries and certain animals with migratory habits are badly affected due to the fragmentation. यहाँ पे ये fragmentation का part है, यहाँ पे habitat का part है. So read it by yourself. You will get to know it is not like something scientifically written. Over exploitation is the next cause. Over exploitation, किसी चीज़ को ज़्यादा खराब कर देना. Humans have always depended on nature for their greediness and the neediness both. But when need turns to greed, it leads to what? It leads to over exploitation. Leads to over exploitation. Of the natural resources, many species extinctions in the last 5,000 years, जैसे स्टीलर सिकाऊ हो गया, पैसेंजर पिजन हो गया, और due to the over exploitation by humans, presently many marine fishes are also over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. Third one is the alien species invasion. Alien species invasion means alien जो कि वो वहाँ पे कभी पैदा नहीं होती, वहाँ पे उसका कोई रहन सहन का नो